Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well and you have started studying these all chapters, all subject that your teachers has started teaching you from the month of April, right? So I hope, just in case if you have missed those videos, those lectures during that duration, I want you to pay more keen attention, more proper attention right now, so that you can study well, you can prepare your notes according to the syllabus, and of course for your future higher classes. Okay, so as you all know beta that we have started this chapter, synthetic fibers and plastic, where in your previous video I have given the basic introduction about synthetic fiber. Also we have started rayon. So continuing that part, we are today going to talk about nylon. Okay, so which is another synthetic fiber. I have written over here the properties and uses also, but before that let me give you a basic introduction about nylon, how it is prepared, and why they have been used and how it has been synthesized or made. Okay, so nylon is the first commercially synthesized synthetic fiber. Okay, so it was basically started simultaneously in two different cities, that is New York and London. Okay, so New York and London दोनों ही जगह ये simultaneously एक ही जगह बस एक ही साथ start हुआ था. Thus it got its name nylon. NY from New York, okay, and LON from London. Okay, so in this way it got its name nylon. So it is the first commercially synthesized synthetic fiber which is made using without any natural material from raw material from plants or animals. Okay, there are various nylons that you will be studying in your higher classes, like nylon 6, nylon 6 and nylon 510 also. So that these are important variations or various types, I would say, of nylon that you will be studying in your higher classes. Just for now, it's for your knowledge to understand that yes, there are various types of nylons present. So if we talk about the preparation, how nylon is prepared. Okay, how nylon is prepared. If we talk about this, see, in 1913 it was commercially synthesized without using any natural raw material from plants and animals. So how it has been synthesized? See, it has been synthesized commercially with the help of what? Coal, water and air. Okay, so it was very popular during the Second World War days. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तब जब इसका प्रोडक्शन हुआ, जब इसको फाइंड आउट किया गया, डिस्कवर किया गया, है ना, तब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू था. और इन पर्टिकुलर तीन चीज़ें, कोल, वाटर एंड एयर, इनके मिक्सचर से इसे क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया. अब आप बोलेंगे मैम कि यहाँ कोल, वाटर, एयर ये तीनों भी नेचुरल है, फिर ये नेचुरल कैसे नहीं हुआ? सो इसको सिंथेसाइज किया गया है ना, नेचुरल नहीं है ये, नेचुरल ऑक्यूरिंग से नहीं मिला है, हमने उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाया है. ठीक है, हमने लेबोरेटरी में इसे क्या किया है, कवर अप किया है, उसको किस तरीके से बनाया गया है, उसका प्रिपरेशन वो हम देखेंगे. उस पर से आपको समझ में आएगा कि क्यों नेचुरल नहीं है ये, क्यों प्योरली सिंथेटिक फाइबर है. देखिए यहाँ दिखने में हमें भले ही लगता हो, है ना, लेकिन इन नेचुरल चीज़ों से हमने ऑब्टेन कर नेचुरली नहीं मिला है, हमने इसको आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट किया है, हमने इसे खुद डेवलप किया है. ओके, हमने मीन्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने. सो नायलॉन फाइबर इज अ पॉलीमर. ओके, इट इज़ अ पॉलीमर मेड अप ऑफ केमिकल यूनिट्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. केमिकल यूनिट्स कौन सी है? पॉलीअमाइड्स. ओके, पॉलीअमाइड्स जो है ये एक केमिकल यूनिट है ऑफ अ पॉलीमर. नाउ पॉलीअमाइड इज ऑल्सो हैविंग केमिकल यूनिट्स मेड अप ऑफ टू मोनोमर्स. दो मोनोमर से बना हुआ है ये
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा है, हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज द एडिपिक एसिड। अब देखिए ये जो पॉलीअमाइड्स है इनके जो केमिकल यूनिट्स है ना, ये हेक्सामिथिलीन डायअमाइन एंड एडिपिक एसिड, द सॉलिड चिप्स ऑफ these polymers, these polyamides are heated and forced through a heated spinneret। क्या करते हैं, इसके सॉलिड चिप्स लेते हैं, उन्हें हीट करते हैं और बहुत ही एक हीटेड स्पिनरेट के थ्रू जो है फोर्सफुली उसे पास ऑन करते हैं। द थ्रेड दैट वी गेट इज नथिंग बट नायलॉन, ओके। तो इसके बाद जब वो जो कूल डाउन होकर जो फिर से वापस सॉलिडिफाई हो जाते हैं ये, और जो सॉलिडिफाइड मटेरियल है दैट कैन बी फर्दर स्पन और वोवन, ओके। व्हाट इज स्पन एंड वोवन दैट यू हैव स्टडीड इन 6th standard and 7th standard also, so I don't have to explain each and every term, right? I hope that you understand कि solidify होने के बाद जैसे ही ठंडा होगा वापस से वो solid बन जाएगा, तो जैसे ही वो solid form में आने लगते हैं हम उसको क्या करते हैं, spun करना शुरू करते हैं। and how does it get its actual form of nylon, ठीक है। so it is basically very strong, elastic, light in weight material and that is why it is more popular in making clothes। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नायलॉन के कपड़े क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, तो इस वजह से इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है उनमें, और दैट इज़ द रीज़न कि हम कपड़े बनाने के लिए ज़्यादातर नायलॉन के कपड़ों का जो नायलॉन मटेरियल है उसका हम यूज़ करते हैं। सो इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको पूछा जाता है, बुक में आपको सिलेबस में नहीं दिया है, इसलिए आई वॉन्ट यू टू नोट ईच एंड एवरीथिंग, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, okay। I'm not saying note it down in your chemistry notebook, but you must keep it as your notes because this material is not available in the book। आपके बुक के सिलेबस में नहीं दिया है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आप अपने पास इसे ज़रूर नोट करके रखें। टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, सी as it is a very strong, elastic, durable, light in weight material, that is why it is used in what, making tracksuit, uniforms and parachute। तो ट्रैक सूट आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी से नहीं फटते। इवन पैराशूट है ना, वो बहुत ही लाइट इन वेट होता है, दैट इज वाई दैट हैज बीन यूज्ड, ओके। नायलॉन इज हैविंग अ वेरी हाई स्ट्रेंथ, इट इज़ वेरी हाई स्ट्रेंथ, दैट इज वाई आपने देखा होगा कि जो क्लाइंबिंग रोप्स होती है बहुत ही मोटी और बहुत मजबूत होती है, जल्दी से नहीं टूटती। इवन नायलॉन के बारीक वाले तार पर अगर आप देखेंगे ना, रस्सियाँ जो होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं और बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें साथ देती है, काम आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से वो टूट कर खराब हो जाए, तो दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड मोस्टली इन क्लाइंबिंग रोप्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन इज दैट इट ड्राइज वेरी क्विकली एंड इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। इसलिए आप देखिए जितने भी स्विम वेयर्स हैं, है ना, जितने भी आपके स्विम सूट हैं वो सभी नायलॉन से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वो सूख जाते हैं और बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इट रिमेन्स रेजिस्टेंट टू मॉथ एंड मोल्स ऑल्सो। व्हाट आर मॉथ एंड मोल्स? सी आपने देखा होगा नेप्थलीन बॉल्स रखे जाते हैं जनरली कपड़ों के बीच में, उनमें से एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है, या हमें छोटे छोटे कीड़े लगने का बहुत डर होता है। जनरली जो सिल्क के कपड़े हैं, है ना, कॉटन के कपड़े हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, उनमें लगने के बहुत चांसेस होते हैं। सो यहाँ नायलॉन के कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं है, दे आर रफ एंड टफ, दे आर रेडी टू यूज़, दे आर वेरी लाइट इन वेट, ड्यूरेबल होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंटली मॉथ्स एंड मोल्स से रेजिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट नायलॉन इज हैविंग अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा? ये आपने देखा होगा किसी को टच करने के बाद आपको एक करंट सा महसूस होता है। इवन इफ़ यू आर टचिंग अ डोर ऑल्सो, है ना, तो उसमें से भी एक स्टैटिक वेव्स निकलती है, एक स्टैटिक करंट निकलता है। तो ये हमें नायलॉन में देखने मिलता है। तो जब कभी भी नायलॉन क्लोथ्स दे आर वोवन, वी हियर अ क्रैकिंग साउंड, एक क्रैकिंग साउंड हमें सुनाई देता है जब कभी भी ये कपड़े बुने और वोवन किए जाते हैं। ओके, सो इट हैज़ अ वेरी हाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी
property. Okay, so this was all about nylon property. Let's see the uses. Since it is very strong and elastic, that is why it is used in where parachutes, rock climbing ropes, fishing nets, tire cords, car seat belts, toothbrush bristles, even the toothbrushes we use. Here we have, देखा होगा आपने कि टूथब्रश वगैरह जो है ना आपके जल्दी ख़राब नहीं होते, अच्छे लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं। इवन आपके कार सीट बेल्ट हो जाते हैं क्या, अचानक से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्या, ख़राब हो जाते हैं? नहीं, वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। आपकी कार बदल जाएगी पर कार के सीट बेल्ट जो होते हैं दे रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होते हैं। सिंस इसकी प्रॉपर्टीज जैसी होंगी वैसा उसका यूज़ होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई अप होते हैं, बहुत लेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए कहाँ यूज़ होते हैं? स्विम सूट में। इवन जो हमारा अम्ब्रेला का क्लॉथ है वो भी यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, नायलॉन से ही बना हुआ होता है। ऑल्सो वी हैव स्लीपिंग बैग्स मेड अप ऑफ नायलॉन क्लॉथ। नाउ द मोस्ट important disadvantage of this nylon is that it catches fire very easily. बहुत जल्दी ये जो है ना फायर जो है आग पकड़ लेता है, इसलिए कभी भी हम एडवाइस करते हैं कि आप नायलॉन के कपड़े किचन में ना पहने, क्योंकि जनरली किचन एरिया हमारा कुकिंग एरिया होता है, फायर स्टेशन होता है, तो वी जनरली ट्राई टू अवॉइड वियरिंग नायलॉन क्लोथ्स। इवन ड्यूरिंग दिवाली we tell people that do not wear nylon clothes as you might be burning that firecrackers and all, तो हमें उससे दूर रहना है। जो भी आपका फायर स्टेशन का या इवन इफ यू आर लाइटिंग अ कैंडल और यू आर बर्निंग फायरक्रैकर्स, अगर कुछ भी आग से रिलेटेड है तो आपको नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बिकॉज बहुत ही क्विकली जो है ये फायर कैच करता है। सो इसे आप नोट डाउन करिए। प्रिपरेशन के जो दोनों भी मोनोमर्स हैं वो properties and uses, then we will start the next synthetic fiber, that is polyester. Okay, note it down. Yes, our next topic is polyester. Okay, so polyester is also another synthetic fiber which is made up of repeating units of polymers of ester. किससे बना हुआ है ये? रिपीटिंग यूनिट्स। ओके, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीमर ऑफ ईस्टर। पॉलीमर ऑफ ईस्टर, ये सब नाम आपके लिए बहुत ही न्यू है ना। पॉलीमर, ईस्टर, ये नाम बहुत यूज हो रहे हैं और बहुत ही यूनिक भी आपको साउंड कर रहे होंगे, नए लग रहे होंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑल दिस सिंथेटिक फाइबर्स। सो जैसे जैसे मैं लिखते जाती हूँ आप भी अपने पास नोट करके रखिए। What did I said? That this synthetic fiber is made up of what? It's a repeating unit of polymer of ester. What is ester? Ester is nothing but a chemical. Okay, it is a chemical unit that gives fruits their fruity smell. जैसे आपने ऑरेंज की स्मेल कभी लेके देखी है, बहुत ही टैंगी सी, नींबू की भी टैंगी सी स्मेल आती है, मैंगो की एक अलग ही अरोमा है, अलग ही खुशबू आती है। तो वो जो खुशबू है, जो फ्रूटी स्मेल है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द केमिकल ईस्टर। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग दैट फ्रूटी स्मेल टू द fruits. Okay, so if we talk about examples of polyester, it could be most popular is what? Terylene. Okay, terylene, Dacron is there, and I would say Terene also. Terene also is there. Okay, so there are plenty of examples that could be taken while studying polyester. बट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, फेमिलियर नाम है, दैट इज़ द टेरिलीन। टेरिलीन बहुत ज़्यादा यूजुअली पॉलिएस्टर के क्लॉथ के एज एन फैब्रिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद डिफरेंट अदर फैब्रिक्स ऑल्सो टू गेट अ मोर एडवांस टाइप ऑफ अ फैब्रिक। लाइक टेरिलीन इज मिक्सड विद कॉटन, ओके, टू गिव व्हाट? टेरिकॉट. It is also mixed with wool, okay, to give what? Terry wool. So you will find in the market
different types of terracotta, polycot, even terry wool also. Basically it's a mixture of two fabrics, ठीक है, दोनों को मिलाकर जो है एक फैब्रिक बनता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं। ओके, सो सिमिलर अगर हम प्रिपरेशन देखें कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो 3 केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फर्स्ट वन इज द टेरेप्थेरिक एसिड। टेरेप्थेरिक एसिड, it is combined with dimethyl ether, which is again combined with dihydric alcohol. This reaction, okay, this reaction is really important in terms of preparation of polyester। अगर आप polyester का preparation आप देख रहे हैं तो ये 3 reaction, ये जो 3 terms है chemicals का नाम है, ये बहुत important है, ये MCQs में भी पूछे जाते हैं। Terephthalic acid, dimethyl ether and dihydric alcohol, these are combined to form the polymers of this polyester। okay, सेम प्रोसेस है जैसे हमने नायलॉन को जो हीटेड स्पिंडलेट से पास किया था, सेम प्रोसेस हम पॉलिएस्टर के लिए भी यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल्सो मेल्टेड एंड स्पन, इनको भी मेल्ट किया जाता है और स्पिंडलेट से पास किया जाता है, एंड थ्रू द होल्स वी गेट द सॉलिडिफाइड fibers and then they are spun and woven। सिमिलर प्रोसेस है जैसे नायलॉन का है, बट वहाँ पर केमिकल कौन सा था, एडिपिक एसिड था, है ना, हेक्सामिथिलिनमाइन था, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये दोनों जगह प्रिपरेशन में आपको काम आएगा। इसका पॉलिएस्टर का जो बहुत ही फैमिलियर नाम है दैट इज द PET, पॉलीइथीन टेरेप्थलेट। ये आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आपने बॉटल्स खरीदी हो, यूटेंसिल्स खरीदे हो, है ना। PET ये पॉलीएस्टर का बहुत ही फेमस नाम है। तो बेसिकली पॉलीएस्टर क्या है, ये ऐसा फैब्रिक है, ऐसा सिंथेटिक फैब्रिक है जिसे मिक्स किया जाता है विद कॉटन एंड वूल। तो टेरिलीन इसका बाय प्रोडक्ट जो भी टेरिकॉट और टेरिवूल बनता है, पॉलीएस्टर जो कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल, कॉटन और वुलन के साथ मिलाकर बनाया जाता है, और इन सभी में सबसे पॉपुलर जो है वो है PET, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, सिंस इट इज अ सिंथेटिक फाइबर, इट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ऑल्दो इट इज ऑल्सो रिंकल रेजिस्टेंट, है ना। टेरिकॉट के कपड़े आपने देखा होगा, कैसे भी पहने कैसे भी रखिए, उन्हें आयरन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं। They are very light in weight and they remain unaffected by water, especially salt water। Okay, so salt water से unaffected रहते हैं, that is why they are used as sails of ship। जो एंकर और सेल्स देखे होंगे आपने, ये उन्हीं से बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन पर जो खारे पानी का है या नमक का है उसका असर नहीं होता। They remain resistant to stretching and shrinking, it's one and the same thing। wrinkle resistant होना, shrinking और stretching जो है वो अच्छा होना, ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, श्रिंक नहीं होते। जनरली जो कॉटन के कपड़े हैं आपने देखा होगा कि आफ्टर 1 वॉश 2 वॉश वो श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं, बट पॉलिएस्टर जब यानी कॉटन जब टेरिलीन के साथ मिलाया जाता है तो वो क्या होते हैं, वो श्रिंक नहीं होते, और दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड एज कर्टन्स एंड ड्रेपरीज। कर्टन और ड्रेपरीज बनाने में भी इनका यूज़ होता है। ओके, they absorb very little water and they dries out very quickly, so during the rainy season this type of clothes are usually wear or worn so that they can absorb very little water and they can be very dry quickly। okay, they remain resistant to chemicals also। जो भी कभी कई बार होता है कोई केमिकल रिएक्शन आपने देखा होगा, कपड़ों पर गिर जाए, है ना, जैसे हल्दी वाले दाग देखा होगा आपने, चाय वाले दाग, तो या कोई सडन कोई दवाई हो या कोई केमिकल हो गिर जाता है तो किसी के रेशे निकल जाते हैं, कुछ एकदम ही खराब हो जाते हैं। तो ये जो पॉलीकॉट या पॉलिएस्टर के जो कपड़े हैं, है ना, ये जो केमिकल का एक्शन है उससे रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ को नोट करिए अपने पास क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस ऑल हैव नॉट बीन गिवन इन योर बुक ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू इन योर हायर क्लासेस। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको।
डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज द यूजेस आर डिसाइडेड, है ना, जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसा उसका यूज होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और विंटर रेजिस्टेंट होते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर यूज्ड फॉर सूट, जैकेट, शर्ट्स एंड डिफरेंट ड्रेस मटेरियल्स, द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट ड्रेस मटेरियल्स. Since it is unaffected by salt water, that is why they are used in making sails, okay, sails of the ships or anchors of the ship. Okay, PET is a very familiar form of polyester. ये आपको बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स में, फिल्म्स जो कार के ऊपर जो फिल्म्स लगती है, कैसेट में लगने वाली फिल्म्स हैं वो बनाने में, वायर्स बनाने में एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स में आपको PET जो है वो यूज होता है. So this all have been taught to you in the month of April also. From the next video onwards, I will be taking the new topic, that is the acrylic one. Okay, then we will start about thermoplastic and thermosetting plastic. So be ready with the pen and paper. Always sit with your pen and paper so that you can note down each and everything, because whenever I start teaching, I don't prefer the word to word lines given in the book. I try to give you more and more knowledge about the topic, the depth of that topic, so that can be very much helpful for your future. Okay, तो आप इन सबको नोट करके रखिए अच्छे से. I'll meet you in the next video. Until then, take care and keep studying, keep making your notes, that these are very important. Good day, children.